گے اور کلاس کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا لیسن اپلیکیشن میں سے کیسے ڈھونڈنا ہے اور پریکٹس کیسے کرنی ہے، تاکہ کچھ اسٹوڈنٹ ابھی نہیں آ رہے تو وہ بھی آ جائیں گے، تو پھر سب کو میں ساتھ میں بتا دوں گی۔ ابھی ہم لیسن کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھے گا لیسن اور باقی اسٹوڈنٹ مائک میوٹ کر کے اونچی آواز میں پڑھیں گے، اور اتنا اونچی آواز میں کریں گے کہ آپ کو بھی آپ کے کانوں میں آواز آئے۔ کوشش کیا کریں یہ 40 منٹس آپ الگ بیٹھ کے لیں کلاس، اور آسانی کے ساتھ آپ پڑھ بھی لیں، آپ ڈسٹرب نہ ہوں، اور اگر تو آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے، ایک جگہ بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ ایزیلی جو ہے کلاس لے سکتے ہیں، ڈسٹرب نہیں ہوں گے آپ۔ چلیں، قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، پینسل ہے آپ کے ہاتھوں میں، جی سب کے پاس ہے قرآن؟ قرآن سب کے پاس ہے، سب نے کھولا ہوا ہے؟ کائنڈلی رسپانس کیجئے، سب اسٹوڈنٹ رسپانس کریں۔ جی ہے، میں نے اوپن کیا۔ چلیں، جس نے نہیں کھولا جلدی سے قرآن مجید کھول لیں۔ جی سعدیہ، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی سب اسٹوڈنٹس غور کیجئے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی تجوید کا ٹیچر کو آدھے سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تجوید کے کس سٹیج پہ ہیں یا کس لیول پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو اتنا نیٹ اینڈ کلین اینڈ شارپ کرنا ہے کہ سننے والے کو پہلے امپریشن میں ہی پتہ چل جائے کہ آپ بہت اچھا تجوید پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کر کیا سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اپنے فری ٹائم میں پریکٹس کریں اونچی آواز میں۔ آپ گھر میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہیں، تو اگر آپ فری ہیں تو بے شک آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو ضروری نہیں ہے دیکھ کے پڑھنا، آپ پریکٹس کے لیے بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کرنا کیا ہے، آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں 2-3 چیزیں ہیں، غور کیجئے گا۔ اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ اور عین میں حمزہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے اعو، اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور باللہ نہیں کرنا، باللہ، اعوذ باللہ۔ تو باللہ کو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو یہ مسٹیک ہوتی ہے، تو یہ منہ کھولنا ہے آپ نے، زبر، کھڑا زبر اور الف کے لیے ہمیشہ آپ کا منہ کھلے گا۔ من الشیطان من الشیطان کو موٹا رکھنا ہے، شین کے بعد تو جو آ رہا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ موٹا کرنا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم نہیں کرنا، کوئی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں الرجیم، واو کی ساؤنڈ آتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پر واو نہیں ہے، نہ ہی پیش آ رہا ہے۔ پیش اور واو کے لیے آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں، جبکہ باقی کسی حرف کے لیے یا کسی بھی حرکت کے لیے آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوگے، اگر ہو رہے ہوں گے تو وہ مسٹیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان چیزوں کو ابھی آپ نے فالو کرنا ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بتاتی جاؤں گی۔ اعوذ باللہ میں کیا آپ نے فالو کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ لکھنا چاہیں تو بے شک لکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، نیروجیم تو اسٹوڈنٹ یہ غلط پڑھتے ہیں، نیراجیم، نیراجیم، را کے اوپر زبر ہے، اور سیم اسی طرح بسم اللہ، بسم اللہ بے نہیں کرنا، اسٹوڈنٹ بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ بھی مسٹیک ہوگی، بسم اللہ بھی نہیں کرنا، منہ کھولنا ہے، بسم اللہ، اور بسم اللہ، اور آگے الرحمن، نیر وحیم، پھر اسٹوڈنٹ پھر سے نون کو جو ہے واو کی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، نیر راجیم، نیر را، نیر وا نہیں کرنا۔ تو اگر آپ کی واو کی ساؤنڈ آتی ہے تو پیش کی ساؤنڈ آتی ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جی سعدیہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जी मुंह खोलना है, मीम के ऊपर खड़ा जबर है अर्रहमान में। अर्रहमान नहीं करना, ना ही बिस्मिल्लाह करना है, बे नहीं करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। चले आयत नंबर 2 से, अल्हम्दुलिल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि। हा और हा में फर्क रखना है, हा की जगह आपने हा नहीं निकालना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झटके नहीं देना, रब्बिल आलमीन ऐसे नहीं, स्मूथली आपने पढ़ना है। आपने एक ही साउंड में पढ़ना है, स्मूथली, झटकों से बचना है। दोबारा से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आलमीन का नून जो एंड में है उसको वाजे करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वाजे नहीं करते, आलमी करके खत्म कर देते हैं। तो दोबारा से पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह। और रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको बता रही हूँ कि मीम के ऊपर जो खड़ा जबर है और जबर है, इसके लिए आपने मुंह खोलना है। जबर अलिफ और खड़ा जबर के लिए मुंह खोलना है, वरना आपकी साउंड मुंह से बाहर ही नहीं निकलेगी। कैसे आएगी? अर्रहमा, मैं नहीं करना, अर्रहमा, अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। बारकल्लाह फिक। आई होप बाकी सब स्टूडेंट भी साथ में पढ़ रहे होंगे। जी सादिया नेक्स्ट आप पढ़िएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे पढ़ूं मैं? पढ़ते जाइए, जी जी पढ़ते जाइए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एहदी नहीं सिरात करना, इहदी, हमजा जेर हा, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। इह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पढ़ते ठीक है जाइए। मैम। हाँ जी ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। चलें बारकल्लाह फीक। अब आपने करना क्या है साथिया, आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो झटकों से बचना है। तो बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, सिर्फ आपके एक एक लफ्ज के ऊपर झटका सा आ रहा है, तो स्मूथली आपने पढ़ना है, एक ही साउंड में, एक ही लय में आपने साउंड के साथ आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जी नरगिस आगे से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए आयत नंबर 8 से, सॉरी अगर आगे से सूरह बकरा स्टार्ट होगी तो सूरह बकरा मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हाँ जी ये 3 डॉट्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं देखिएगा, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे 2 दफा 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको कायदा बताया था, ए के ऊपर रुकना लाजिम है, या तो रईब के ऊपर रुकना लाजिम है या फी के ऊपर, और हम कहाँ पे रुक रहे हैं? फी के ऊपर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वाव मद्दा ड्रॉप हुआ है। वयुकीमून अस्सला, मीम के बाद वाव है। वयुकीमून अस्सलात, ويقيمون الصلاة. मार्क कर लीजिए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ومما رزقناهم ينفقون. जी। वमिम्मा, वमिम्मा में देखिए दूसरे मीम के बाद अलिफ है, तो ये भी ड्रॉप हुआ है, इसको भी मार्क कीजिए। सिर्फ अलिफ के नीचे आपने लगाना है कि आपका ये अंडरलाइन करना है, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ ऐसे, ताकि आपको पता हो कि आपका अलिफ मद्दा ड्रॉप हुआ है और कुछ गलती नहीं हुई आपकी। वमिम्मा रज़क़नाहुम, ومما رزقناهم ينفقون. आगे से पढ़िए। ال- والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. युकीनून नहीं, वाव मद्दा है, युकीनून। وبالآخرة هم يوقنون. चलें ठीक है, काफी है, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, सादिया फैसल मेरे साथ पढ़िएगा नेक्स्ट। उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम, أولئك على هدى من ربهم व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। وأولئك هم المفلحون. हाँ जी, वो उलैइका नहीं, लाम के ऊपर जो खड़ा जबर है और मद को हमने मुंह खोल के अदा करना है। इस एक वर्ड को दोबारा पढ़ेंगे, व उलैइका। وأولئك चले नेक्स्ट पढ़ते हैं, आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन, إن الذين كفروا سواء. वाव के लिए और पेश के लिए आपने हमेशा मुंह गोल करना है। कफरू सवाउन, كفروا سواء अलैहिम अअंज़रतहुम। عليهم أأنذرتهم. हाँ जी, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अअंज़रतहुम मिस्टेक है। हमजा के बाद देखिए, हमजा के बाद अलिफ है तो उसके ऊपर जबर है, वो हमजा है, दोनों ही हमजा हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश साकिन आ जाएगा तो वो हमजा बन जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर वो मद्दा होगा। तो देखिए, अअंज़रतहुम, तो मैम इसको अभी कैसे पढ़ना है फिर, जैसे अभी आपने पढ़ा? अअं जी जी, अअंज़रतहुम, أأنذرتهم अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। أم لم تنذرهم لا سوري أم لم تنذرهم لا يؤمنون. चले नेक्स्ट आया पढ़िए आप। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. नेक्स्ट आया भी। ومن नेक्स्ट पढ़ते الناس जाइए। من जी नेक्स्ट पढ़ते जाइए। जी ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين अच्छा यहाँ पर يخادعون देखिए, الله.
वल्लज़ी जी यहाँ पर देखेंगे पिछली आय में वमिनन नासी मन यकुलु, काफ के बाद वाव मद्दा है। सब स्टूडेंट मार्क कीजिए मन यकुलु। जी पढ़िए सादिया, आपका माइक म्यूट है। जी युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून चले फी कुलूबिहिम मरदुन जी चले पढ़ लें, पढ़ने आय को कंप्लीट कीजिए। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलाहुम अज़ाबुन अलीम बिमा जी ये आया मेरे कानू साथ पढ़िए, यक्सिबून। क्योंकि इसमें जी मिस्टेक हो रही है। फज़दहु नहीं, ज़ा के बाद और अलिफ है। जी फज़ादहुमुल्लाहु मरदन नहीं, मरदा। फी जी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। वलाहुम आपने पढ़ा वलाहुम। जो भी स्टूडेंट वलाहुम पढ़ते हैं नाम को लंबा करके वो मार्क कर लें, क्योंकि मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ऐसी मिस्टेक है इसका मतलब ये होता है कि आपका लाम के बाद आप अलिफ बढ़ा रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। चलिए काफी है, बारकल्ला। जी नुसरत नेक्स्ट मेरे साथ पढ़िए। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू وإذا قيل لهم لا تفسدوا फिल अर्दि क़ालू इन्नमा في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون इन्नमा नहनु मुस्लिहून। إنما نحن مصلحون ऊंची आवाज में पढ़िए नुसरत, आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए और क्लियर लफ्जों में आपने पढ़ना है। आपकी सांस बहुत क्लियर आनी चाहिए और ऊंची आवाज में माइक जो है करीब करके इन्नमा नहनु मुस्लिहून। إنما نحن مصلحون इन्नमा नहीं, मीम के बाद अलिफ है, मार्क कीजिए मीम के बाद अलिफ। इसको आपने अंडरलाइन करना है। इन्नमा, इस लफ्ज को दोबारा पढ़िए। إنما نحن مصلحون अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून ألا إنهم هم المفسدون वलाकिन ला यशउरून। ولكن لا يشكرون वइज़ा क़ील लहुम आमिनू وإذا قيل لهم ऊंची آمنوا आवाज में पढ़िए नुसरत, ऊंची आवाज में पढ़िए। وإذا आपकी आवाज قيل لهم आपकी आवाज क्लियर آمنوا नहीं आ रही। सिस्टर डिस्टर्बेंस ही हो रहा है, शायद मेरी साइड में ही हो रहा है। मैं दोबारा काट के करूँ? नहीं अभी पढ़ लीजिए, अभी ठीक आ रही है। आप ये है कि क्लियर बोलिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ आए आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है और मैं आपको बता सकूं। आयत नंबर 13 पढ़िए, खुद से पढ़िए।
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ نہیں، آیت نمبر آمَنُوا 13، قَالُوا آیت نمبر جی آیت نمبر 13 پڑھیے. دیکھیے 13 کون سی ہے؟ جہاں آیت اینڈ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ پچھلی جی آیت کا نمبر ہوتا ہے. مطلب پچھلی آیت جی کا جی نمبر نہیں ہوتا، اسی آیت کا نمبر ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو آیت نمبر 13 ہے نا، مارک کیا میں نے، یہ جی یہاں سے جی شروع ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. چلیے جی 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آمَنَّا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الشُّفَهَاءُ عندهم الشفاء ولكن لا يعلمون. چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے. چلیں کافی ہے، بارک اللہ. اچھا جی سارا، نیکسٹ میرے ساتھ پڑھیے گا. نیکسٹ آیا 14 سے. میم یہ والی آیت ایک وَإِذَا دفعہ آپ لَقُوا پڑھ دیں گے، الَّذِينَ. ہمیں کلیئر آواز نہیں آئی 13 آیت کی. يقول الذين آمنوا قالوا چلیں میں مائک آمنا میوٹ کر دیں گے، وإذا سب خلوا مائک میوٹ إلى کر دیں گے. شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں نصرت. اچھا، سب اسٹوڈنٹ جب بولیں تب مائک آن کریں، نہیں تو آپ کا مائک میوٹ ہونا چاہیے. چلیں سارا آپ میرے ساتھ پڑھیے، اسی آیت سے 13 کو ہم پڑھیں گے دوبارہ. اعوذ باللہ وَإِذَا قِيلَ چلیں سارا، آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے، مائک دور ہے آپ کا. اب آ رہی ہے میم آپ کو؟ جی جی اب ٹھیک ہے. چلیں ہم ٹھیک 13 آیا نمبر سے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے گا. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. جی الناس میں دیکھیے نون کے اوپر شد ہے، میم اور نون کے اوپر جب بھی شد آئے گی ہم نے غنہ کرنا ہوگا. میم اور نون کے ساؤنڈ کو یعنی ہم نے ناک میں لے کر جانا ہوگا. آمن الناس. آمَنَ النَّاسُ بارک اللہ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. 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 بارک اللہ. الا انهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون. چلے نیکسٹ آیا پڑھیے. جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جی آمنا میں آمن دیکھیے، اس میں جی. آمنا نون کے بعد الف ہے جو ڈراپ ہوا. آمنا اور نون کے اوپر شد ہے، پہلے تو غنہ ہوگا پھر ہم نے الف مدہ کو پروناؤنس کرنا ہے. آمنا. آمنا. چلیے نیکسٹ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. چلیں بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا. صرف نحنو میں دیکھیے گا نون کے اوپر پیش تھوڑا سا لمبا ہوا، نحنو ایسے نہیں، نحنو صحیح. مستہزئون. جی ٹھیک صحیح. اس کو مارک کر لیجیے. چلیں بارک اللہ فیق. عائشہ نیکسٹ پڑھیے گا میرے ساتھ. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 15 से अल्लाहु यस्तहज़िउ। अल्लाहु यस्तहज़िउ लाम इसमें जलाला में जो लाम है मोटा रखेंगे। यस्तहज़िउ हमजा को हमने मुहक्कक पढ़ना है और हा की साउंड गले से निकलेगी। अल्लाहु यस्तहज़िउ। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम। बिहिम व यमुद्दुहुम व यमुद्दुहुम नहीं, दाल के बाद वाव है। नहीं, हाँ जी, तो वाव हमने पढ़ना भी नहीं है। फिर दाल के ऊपर जो पेश है उसको लंबा नहीं होने देना। व यमुद्दुहुम व यमुद्दुहुम मार्क कर लीजिए। फी तुग़यानिहिम फी तुग़यानिहिम यअमहून। यअमहून नेक्स्ट पढ़िए आप। उलाइकल्लज़ीना अश्तरा वुज़्ज़लालता अश्तरा बिल नहीं, देखिए उलाइकल्लज़ी नश्तरा। अश्तरा देखिए हमजा नहीं है यहाँ पर, जो अश्तरा यहाँ पर करेंगे तो नून को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाएंगे। अच्छा उलाइकल्लज़ीना अश्तरा वुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। चले बारकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। लेकिन एक वर्ड पे यहाँ पर देखिएगा, फमा राबिहती। राबिहती रा के बाद अलिफ है क्या? फमा रबिहती फमा राबिहती। सब स्टूडेंट पढ़िए साथ। फमा रबिहती रा नहीं, राबिहती। फमा रबिहती जी, राबिहती नहीं, मैं आपको यही चीज बार बार बता रही हूँ, रा के बाद अलिफ नहीं है। और राबिहती फमा रबिहती बेहतर हुआ। दोबारा से देखिए। नहीं, इसमें देखें ना, आपकी मिस्टेक देखिए कहाँ कहाँ पर हो रही है। फमा राबिहती नहीं, मीम के बाद अलिफ है, ये ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए। फमा नहीं है, मीम के बाद अलिफ है। फमा और रा के बाद अलिफ नहीं है, जो कि आप खुद से अलिफ बना रहे हैं। रा बिहती नहीं, फमा रा बिहती। फमा पढ़िए। रबिहती चलें, बारकल्लाह, प्रैक्टिस करनी है सबने इसकी, ताकि ये आपकी मिस्टेक जो है अगेन ना हो। सबने प्रैक्टिस करनी है। जो मिस्टेक्स आज आपके लेसन से निकली है, फमा आपका रबिहती लेसन यही। चलें, सही। काफी है, आपका लेसन यहीं तक है जी। आयत नंबर 16 तक आपका लेसन है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो चीज मैंने आपको कल बताई थी कि आपने एक दफा अस्मा खुदा के साथ पढ़ना है, 3 दफा खुद से पढ़ना है, और जो पोर्शन मैं आपको बताऊंगी उसको रिकॉर्ड करके भेजना है। अब आपने करना क्या है कि अपना लेसन कैसे ढूंढना है, उसमें से, एप्लीकेशन में से। मुझे ये बताइए, एप्लीकेशन सबकी डाउनलोड हो गई थी? कुरान फॉर ऑल एप्लीकेशन जी। सबने डाउनलोड कर ली है? हाँ जी। चलें, 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। जी अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके पास एप्लीकेशन डाउनलोड ना हुई हो, या भी वो सोच रहा है कि मैं बाद में कर लूंगा? सबने कर ली? मैम मैं मुझे याद ही नहीं रहा है डाउनलोड करना, मैंने भी करनी है। हाँ जी, अभी कर लीजिए, क्योंकि आज का लेसन आपने करना होगा घर पे। कल क्लास से पहले आप अपने टाइमिंग्स और सिस्टर के साथ पढ़ के आएंगे। अब ये है इंशा कि टाइमिंग्स करके आना आपके लिए लाजिम है।
सब डाउनलोड कर लें अगर किसी ने नहीं की। वैसे आई होप कि कल ही मैंने आपको बता दिया था, आपने कर ली होगी। चले मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेसन कैसे ढूंढना है। उसमें स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। जी, सेल फोन की स्क्रीन शेयर हो गई है आपको। काइंडली रिस्पॉन्स किया करें सब स्टूडेंट्स। जी मैम हो गई है। जी शेयर हो गई बिल्कुल है। रिस्पॉन्स करना लाजिम है आपके लिए। देखिए ये ऑनलाइन क्लास है, आप मेरे सामने नहीं बैठे, मुझे नहीं पता होता कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रही हैं, तो इसलिए आपको फौरन से रिस्पॉन्स करना लाजिम होता है। तो देखिए अगर कोई स्टूडेंट मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहा तो सबकी मजबूरी तो एक साथ नहीं होती ना, तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको लेकर जाती हूँ कुरान फॉर ऑल एप्लीकेशन में। इसको आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आप इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, या अल कुरान के ऑप्शन पे आएंगे। ये जो इंटरफेस आपके सामने होगा इसमें, तो अल कुरान को सिलेक्ट करेंगे, तजवीद सेकंड नंबर पर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट नंबर को ही सिलेक्ट करना है। बाकी कुरान की भी तजवीद है, एक एक वर्ड के साथ वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने अस्मा खुदा के साथ पढ़ना है ताकि आप में थोड़ी सी मोटिवेशन आए कि हम फीमेल्स बहुत अच्छा कर लेंगे और फीमेल्स कर सकती हैं। इसलिए हम आपको अस्मा खुदा के साथ पढ़ा रही हैं ताकि आप में कुछ मोटिवेशन आए और आपको पढ़ने का स्टाइल और तरीका आए। नंबर फर्स्ट पे आपने सेलेक्ट करना है अस्मा खुदा का, ये आपका आ जाएगा पारा से पारा वाइज। अब आपका जो लेसन है आयत नंबर 16 तक है। आपने आयत नंबर 1 से सूरह फातिहा और बकरा आयत नंबर 16 को आपने यहाँ तक आज करना होगा। करना कैसे होगा वो आगे आगे पढ़ती जाएंगी, स्टूडेंट्स वहां पर पीछे पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग में, लेकिन आपने जब रिकॉर्डिंग चला के रखनी है तो जब स्टूडेंट पढ़ेंगे तब आपने उनके पीछे पढ़ना है, जो इंस्ट्रक्शन वो देंगी उनको भी फॉलो करते जाना है। ठीक है, कोई मुश्किल पेश आएगी, कोई वजह होगी तो आपने मुझे बता देना है। कोई परेशानी फील हो रही होगी तो आपने मुझे मैसेज करना है, और किसी को लेसन नहीं मिल रहा तो भी आपने मुझे बताना है। और आई होप तो आपको इसमें से कौन कहाँ तक करना है रिवाइज? जी, जहां तक आपका लेसन होगा। आज आपका लेसन आयत नंबर 16 तक है ना, तो 16 तक आपने करना होगा। अल बकरा आयत नंबर 16, 8 to 16, ये फोर्थ 4 लेक्चर होंगे। ठीक है चले ठीक है। ठीक है, चलें ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात करनी होगी तो आप फ्री हो के मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल में भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के हवाले से कोई मुश्किल आ रही होगी तब भी आप मुझसे पूछ लेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, जो स्टूडेंट नहीं है वो भी उसको सुन लीजिएगा। और बाकी कोई चीज़ आपको मिस हो गई है शुरू में या एंड में तो फिर भी आप उसको देख सकते हैं। चलें फिर हम एंड करते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अच्छा, अब आपने करना क्या, होमवर्क रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा, कि आपने सिस्टर अस्मा खुदा के साथ एक दफ़ा पढ़ना है, 3 दफ़ा सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है तजवीद के साथ, वो मिस्टेक्स को फॉलो करना है जो मैंने बताई। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग करके पोर्शन की भेजनी है। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।